brightness, let us begin with the lighting deep in front of Ma Saraswati. Mother Saraswati is the goddess of knowledge, wisdom, nature, provider of education, intelligence and speech. I request all the participants to keep silent. When you go to here, answer is already available, it is being used, it is being worked upon. Then why do the same thing again? So it should not be duplicated. Feasible. Feasibility at the level of institute. Now I would request Dr. Veena to continue with her presentation. Thank you. And dear students, I am very happy to be here for this inaugural ceremony of a 2 days workshop on operational research and research methodology. Basically, a few words I want to share with you the importance of research and knowing what are the research methodology. I hope that in next 2 days you will be oriented on how to identify research topic, how to go for research methodology, how to plan the collection of the data, then the data management and review literature, and how to write the thesis. Few points I want to add at this point, that identification of research problem is the most important. My request to all of you that you identify the research problem which you feel is a problem, right? It is not for the sake of going for a thesis, you go for a research. So this is very important, that whatever problem we identify should be important, relevant, and it should be also of some use. James Lind, right? So James Lind was an individual who used to go for voyages basically. And during that particular process, he found out that most of the individuals who go and come back, they come with a scurvy. And that in that particular process, he decided once that why not to do something so that we can take care of this scurvy and they are treated. So he took along with them at least. When it is to be done? Before doing the study. Before doing the study or after identifying your problem? After identifying the problem. After identifying the problem, you do the review of different literatures which are present, and then you formulate your objectives. So ये सब stages आप cross कर चुके हैं. Now there are 4 things which are written here. What are they? Are they different or the same? Thesis, protocol, synopsis, and dissertation. अपने लेवल पे अपन थीसिस बोलते हैं. प्रोटोकॉल इज द स्टेज व्हिच यू हैव कवर्ड. आपने प्रोटोकॉल बना लिया है कि आप अपनी थीसिस किस तरह से करेंगे. दैट इज द प्रोटोकॉल. सिनॉप्सिस इज आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग यू विल बी रेडी फॉर पब्लिकेशन. आपका जो वर्क होगा वो पब्लिकेशन के लिए रेडी होगा. उसके लिए आप एक शॉर्ट में बनाएंगे कुछ चीज जिसे कहते हैं सिनॉप्सिस. इन शॉर्ट, अभी जब आप एथिकल के सामने जा रहे हैं तब भी आपने सिनॉप्सिस बनाई. दैट इज आल्सो नोन एज सिनॉप्सिस. एंड By biostatistics क्या है? The application of statistics. Statistics क्या है? It's a branch of mathematics, and bio means biology. So the application of statistics for living things is known as biostatistics.
बायोस्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स केवल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च में यूज नहीं होता, इट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, इट्स यूज्ड इन योर फिनेंस, बिजनेस, एवरीवेयर. In fact, those who pursue MBA and all, they have to study all these concepts, right? So we are just looking at statistics from a medical research point of view. So why is biostatistics required or why is it needed? In one word, the answer is variability. In one word, the answer is variability. और ये केवल humans पे नहीं, this happens to all the living things. उनके वो that goes to a particular एक जो टाइपिस्ट करता था काल में, वो टाइम देता था आपको आज नहीं परसों आना, उसका हाथ सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते, फिर वो टाइम देता है, वो 24 घंटे में वो आपको टाइम करके देता है, वो क्या सीक्वेंसिंग करता है, क्या लिखता है, ये तो वो जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर साइन करा के सबमिट होता है. दैट इज इन 1980 की बात कर रहा हूँ. एनीवे, बट नाउ दैट इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इज द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आज भी जो हमारा थीसिस टॉपिक था, इवन टुडे आई एम ए प्रोफेसर या डीन भी हूँ, कहीं पे भी अगर नेशनल या इंटरनेशनल से जाते हैं सबसे पहले वो पूछते हैं मतलब योर थीसिस टॉपिक, और उसी के बाद में दे आस्क सो मेनी क्वेश्चन. इवन योर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कहीं पे भी जाओ आप, दिस इज द ओनली दैट वेयर यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. मैं डॉक्टर संजय दीक्षित, डीन MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर. मैं यहाँ इंडेक्स ग्रुप मालवांचल यूनिवर्सिटी में रिसर्च मेथडोलॉजी वर्कशॉप में आया हूँ, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये वर्कशॉप यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है, जिससे कि बच्चे लोग रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए ओरिएंट हों, कैसे रिसर्च की जाए, कैसे उसमें एथिकल कंसिडरेशन किए जाएँ, कैसे रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई किए जाएँ. मेरी यही स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जो भी रिसर्च आइडेंटिफाई करें वो रिलेवेंट हो, जिससे कि कम्युनिटी को और लोगों को फ़ायदा हो इन लार्ज, और डेफिनेटली जो रिकमेंडेशंस दें वो रिकमेंडेशन पब्लिक हेल्थ और पेशेंट इंटरेस्ट के काम आए. रिसर्च ओरिएंटेशन करना PG स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे कि एक तो उनको पेपर पब्लिकेशंस भी करने रहते हैं, और रिसर्च करने से नई नई फाइंडिंग्स आती हैं जो कि हमारे पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए भी काम आएंगी. तो मैं पुनः ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को और डॉक्टर पटेल को और भदौरिया साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत रिलेवेंटली ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की 2 दिन, और आशा है कि स्टूडेंट्स लोग भी इससे बेनिफिट होंगे. थैंक यू. आई एम डॉक्टर VK Arora, actually Professor and Head in the Department of Community Medicine of Index Medical College Research Institute, which is part of Malvanchal University. Actually आज सुबह 2 दिन के लिए हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है जो कि बेसिकली रिसर्च मैथडोलॉजी से डील करता है, और ये जो वर्कशॉप चल रहा है ये मालवांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चल रहा है. और इस मालवांचल यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी कई इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें डेंटल कॉलेज भी आता है, नर्सिंग कॉलेज भी आता है. तो वैसी सारी इंस्टीट्यूट्स के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको इकट्ठा करके उनको रिसर्च के बारे में बताने के लिए जो भी हमने डिसाइड किया वो हम बता रहे हैं. बेसिकली रिसर्च क्या होती है इसको सोचना और समझना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग फॉर PG/UG स्टडीज़ इन मेडिकल साइंसेस, साइंटिफिक मेथड्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है. और उसी में हमने इनको ये बताया है कि एनालिटिकल स्टडीज़ क्या होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ क्या होती हैं, और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्या होती हैं, ताकि इन सब को जब भी आप करते हैं मेथोडोलॉजी के साथ कर सकें. और उसको मेथोडोलॉजी के साथ जब करेंगे तभी आपकी यूनिट या तभी आपकी जो स्टडी होगी वो वैलिड होती है, और उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो रेफरेंस पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल होते हैं. दैट्स ऑल. नमस्ते, मैं डॉक्टर रीना येशिकर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन MGM मेडिकल कॉलेज से. आज मैं यहाँ पे मालवांचल यूनिवर्सिटी का इंडेक्स मेडिकल कॉलेज आई हूँ. यहाँ 2 दिन की वर्कशॉप हो रही है, जिसमें कि हमें एज अ स्पीकर बुलाया गया है.
और ये वर्कशॉप जो है बेसिकली ये रिसर्च मेथडोलॉजी पे है। मेडिकल साइंस में रिसर्च पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स करते हैं, तो इन स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगी और इन स्टूडेंट्स को हम बताएंगे कि किस तरह से रिसर्च की जाती है। अब इस वर्कशॉप में सारा कुछ इन्हें बताया जाएगा कि कैसे रिसर्च टॉपिक लेना, कैसे इस पे काम करना, कैसे सर्वे करना, कैसे उस सर्वे किए हुए मटेरियल या जो डेटा वो कलेक्ट करेंगे उसे कैसे इंटरप्रेट करके और उसकी थीसिस कैसे बनाई जाए। इसमें अलग अलग तरीके से इन्हें स्टडीज़ किस तरह से होती है, बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, तो ये अपनी स्टडी के लिए, अपनी थीसिस के लिए किस स्टडी को, किस अप्रोप्रिएट स्टडी को ये यूज़ करें, ये इन्हें सब बताया जाएगा। इन्हें ये भी बताया जाएगा कि एक अच्छे रिसर्च के लिए क्या चीज़ें नहीं करनी है। जो चीज़ें करनी है वो तो ठीक है, जो चीज़ें नहीं करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमेशा बच्चे वो चीज़ें कर जाते हैं अननोइंगली, उन्हें ध्यान नहीं रहता कि वो हो रही है, और फिर अल्टीमेटली जब वो रिसर्च प्रेजेंट करने जाते हैं तो वो ठीक नहीं बनता है या रिसर्च वो ठीक से नहीं हो पाती है। और इसमें अलग अलग स्टडीज़ बता रहे हैं, इन्हें अलग अलग टॉपिक्स कैसे डिसाइड किए जाएं, ये सब चीज़ें इस वर्कशॉप में बताई जाएगी। मैं डॉक्टर संजीव नारंग हूँ, प्रो चांसलर मालवंचल यूनिवर्सिटी और कन्वीनर ये जो आज रिसर्च मेथडोलॉजी की वर्कशॉप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हूँ। रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो कोविड वैक्सीन हमने देखी अभी रिसेंट, जो डेंगू का बुखार चल रहा है, इस तरह जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज और निदान सब जो है वो रिसर्च का ही नतीजा है। अनुसंधान करना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली मेडिकल फील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च ऐसा नहीं है कि हम उठे और रिसर्च कर ली, हमको उसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड से चलना होता है, एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो उसी मेथड को, ऑर्डर को सिखाने के लिए ये वर्कशॉप आयोजित की गई है और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को थीसिस करनी है, अपनी जो भी रिसर्च करनी है उसके लिए उनको जो है सेंसिटाइज करके उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही है। और इसी तारतम्य में हमने 4 एक्सपर्ट स्पीकर्स बुलाए हैं जो कि अपने विषय में बहुत पारंगत हैं और हमें विश्वास है कि इससे सारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा और वो आगे बढ़कर रिसर्च करेंगे, जिससे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को ही नहीं, पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे फ़र्क पड़ेगा और हम रिसर्च में बहुत आगे जाएंगे।